Yes, students and fellows, you are watching Biochemistry with Dr. Irfan Raza. This is Enzymes Lecture 2. In this lecture, we will discuss substrate concentration and effect of substrate concentration on enzyme. Then we will see enzyme concentration. If we change the enzyme concentration, what will happen to the enzyme substrate complex? And then we will discuss enzyme substrate complex itself. We will define Km, half Vmax, and in the end, we will discuss Michaelis-Menten equation. Dear students, in between these slides, we will discuss some of the important MCQs, and in the end, we will also discuss some of the important MCQs. So I request you to please watch this clip continuously till end. In the first picture, you are watching that these are the enzymes. As mentioned here, these are the almost 5 enzymes, and there are only 2 substrate concentration which are going to cover the active site of these enzymes, of the 2 enzymes. Then we increase some of the concentration, and here it reaches to almost all the enzymes. Active sites are covered, only 2 enzymes are still without substrate, and finally we further increase the substrate concentration and all the active sites are covered now. So these enzymes are fully saturated. So this is the high substrate concentration and this is the low substrate concentration. So if the substrate concentration is low, for example here, the system is unsaturated as free active sites of the enzymes are available. For example, this active site of the enzyme is available, ये वाली active site जो है ये available है, इस enzyme की active site भी available है, इस enzyme की active site भी available है. इस substrate concentration के ऊपर there is only one enzyme जिसकी active site saturate हुई भी है या enzyme substrate complex बना हुआ है. So when we increase the substrate concentration like in this picture, क्या होगा? System becomes half saturated because you can see this the active site of this enzyme, active site of this enzyme, ये still unsaturated हैं. But the active sites of half of the enzymes are almost saturated. So partially the system is saturated. Dear students, now what will happen अगर हम enzyme concentration को increase करें? So in this graph you can see that enzyme concentration was at this point enzyme was 0, the substrate was 0, rate of the reaction was 0. We have added some enzymes, तो 1 डाला substrate concentration के साथ enzyme ने product बनाया, rate of the reaction 1 हो गया. Similarly हम इसको continuously enzyme concentration को increase करते जा रहे हैं, continuously rate of the reaction increase होता जा रहा है, and we can have this plot. ये curve हमें मिलती जा रही है. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट इज अगर आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन अगर हम इस स्लाइड से करें तो हम देखेंगे कि अगर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हुआ, हमने फर्दर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की, रेट ऑफ द रिएक्शन फर्दर इंक्रीज हुआ. हमने एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जहाँ तक इंक्रीज की, रेट ऑफ द रिएक्शन जहाँ तक इंक्रीज हुआ. वी फर्दर इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, देयर इज नो मोर चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन as we saw here that the rate of reaction was continuously going up with the increase of the enzyme concentration. तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर आकर rate of the reaction constant क्यों हो गया? यहाँ पर ऑलमोस्ट हम कहते हैं जी कि 40 यूनिट्स एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की थी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था, बट वी एडेड टू 50, 60, 70, 80 रेट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट है. उसका रीजन ये है कि एंजाइम जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट सबस्ट्रेट अवेलेबल फिनिश हो गया. That is, no more substrate is available to bind with the enzyme, with the increasing enzyme to produce product. So rate of the reaction इस लेवल के ऊपर आकर कांस्टेंट हो गया. तो यहाँ पर ये रेट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट क्यों नहीं हुआ? द रीजन वाज कि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन हम कंटिन्यूसली जिस वक्त इंक्रीज कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट अवेलेबल अनलिमिटेड है. इट इज मेंशन्ड हियर दैट more enzyme molecules can react with more substrate molecules, so the reaction rate increases. कि ये अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में सबस्ट्रेट अवेलेबल है. इफ यू एडिंग कंटिन्यूसली एडिंग एंजाइम, रेट ऑफ द रिएक्शन विल कंटिन्यूसली इंक्रीज अप टू दिस लेवल, राइट? बट हियर द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज लिमिटेड. Only up to this level, there is no more substrate is available. Even if you add more enzyme, there will be no change in the rate of the reaction. So अगर इस किस्म का concept आपका clear है, तो then you will be able to discuss this MCQ.
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि व्हेन इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाइल कीपिंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते रहें, फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो हमने ये किया कि आप ये देखें कि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर भी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एंजाइम अनलिमिटेड है, एंजाइम जो है वो लिमिटेड है और आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? सो दिस इज द एमसीक्यू विच इज डिस्क्राइबिंग दैट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, हम इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विद कीपिंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, ये उलट बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. अब यहां पर आप फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप यहां पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, for example just take it as this is mentioned the substrate concentration while the enzyme is limited, तो हम देखेंगे substrate 10 moles 20 moles 30 moles 40 moles पर आकर rate of reaction constant हो गया of the substrate 40 moles के ऊपर, because further enzymes available नहीं है to produce product. So अब आपके पास choices क्या क्या हैं? आपके पास choice है the reaction rate will decrease due to substrate inhibition, कि अगर हम सबस्ट्रेट यहां पर ऐड करते जा रहे हैं तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. नंबर 2, द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज एंड इवेंचुअली रीच अ प्लेट्यू दैट इज वी मैक्स. इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम पर आकर एक प्लेन सरफेस बन गई, प्लेट्यू बन गया यहां पर. तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रीच होगी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया इस पॉइंट के ऊपर. वेदर दिस इज राइट, देन द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज लीनियर विदाउट लिमिट. तो क्या ये विदाउट लिमिट इंक्रीज होता जा रहा है? नो, ये आफ्टर सम टाइम एक प्लेन सरफेस में कन्वर्ट हो गया. तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, डिक्रीज तो हुआ ही नहीं है. देन द रिएक्शन रेट विल डिक्रीज आफ्टर रीचिंग हाफ वी मैक्स. तो ये हमारे पास अगर ये वी मैक्स है और ये हाफ वी मैक्स है, अभी हम वी मैक्स हाफ वी मैक्स को डिस्कस करते हैं, तो यहां से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. नो, इट्स नॉट हैपनिंग. द रिएक्शन रेट विल oscillate between high and low values, कि ये के ऊपर मूव करता रहेगा इस तरह. No, it's not happening. So option 2 is the good option. I think this is the right one. So the reaction rate will increase and eventually reach a plateau. ये max के ऊपर आकर plane हो जाएगा. There is no more increase. और उसकी reason क्या है कि आप substrate concentration increase करते जा रहे हैं, enzyme concentration constant है. So in the question, similar question, laboratory testing the effect of varying enzyme concentration on the rate of the reaction. यानी कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, जैसे यहाँ पर आप देख लें, ये एक नंबर 1 बॉटल है, नंबर 2 बॉटल है, नंबर 3 बॉटल है. अगर यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं, यहाँ पर 20 यूनिट्स हैं, यहाँ पर 30 यूनिट्स हैं ऑफ द एंजाइम है, तो हम वेरिइंग डिग्री ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कीपिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, तो हम देखना चाहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू एक्सपेक्ट टू हैपन. अब यहाँ पर आप देखें कि अगेंस्ट हम यहाँ पर कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन है, तो हम कहेंगे द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज लीनियरली विद एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. अब आप यहाँ पर फिर इस चीज को देखिए, कीपिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और आप क्या कर रहे हैं, और फिर कहता है एंड इन एक्सेस. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने एमसीक्यूज के अंदर ये चीजें नोट डाउन करनी है कि स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं. कीपिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 1000 मोल्स थे या 1000 किलोग्राम्स थे या 1000 ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट इज अवेलेबल विच इज इन एक्सेस, दैट इज एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. अगर हम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इवन 50 भी करते हैं, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है एंजाइम से, तो फिर क्या होगा? द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज लीनियरली विद एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 10, 20, 30, 40, 60 अप टू 100, ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर हो रहा है. ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा इन एक्सेस प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा. वेदर दिस चॉइस इज राइट, इट सीम्स दैट दिस चॉइस इज राइट. द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज, the reaction rate will decrease as enzyme concentration increases. No, it's not happening. The reaction rate will remain constant. No, in reaction rate तो continuously increase हो रहा है. The reaction rate will show a hyperbolic curve. तो ये कहता है कि ये इस तरह hyperbolic curve बनाएगा. No, it's not. There is no such curve. The reaction rate will decrease and eventually plateau. यानी कि यहाँ पर जाएगा, decrease होकर यहाँ पर से एक मैक्सिमम रेट पर आ जाएगा. ये भी नहीं हो रहा, बिकॉज हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, but the substrate concentration is in excess.
तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा. सो ऑप्शन 1 इज राइट. नाउ माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या कहती है? माइकलिस मेंटन एक साइंटिस्ट था, उसने स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन, दैट इज वेलोसिटी के ऊपर, एंजाइम रिएक्शन की वेलोसिटी के ऊपर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन चेंजेस एज द अमाउंट सबस्ट्रेट इंक्रीजेस, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन और सबस्ट्रेट के दरमियान में इसने कंपेयर किया. इफ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगी. इट स्टेट्स, 3 चीजें ये बताता है. क्या? एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? द रिएक्शन स्पीड इंक्रीजेस क्विकली व्हेन मोर सबस्ट्रेट इज एडेड. कि अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन है तो एंजाइम जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो बहुत क्विकली इंक्रीज होगा. फिर अगर हम एज द सबस्ट्रेट कंटिन्यूज टू इंक्रीज द रिएक्शन स्पीड स्लोज डाउन, तो रिएक्शन स्पीड थोड़ी सी कम होती रहेगी एंड इवेंचुअली वी मैक्स अटेन हो जाएगी. नाउ अब हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन को यहाँ पर देखते हैं. आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 10 यूनिट्स सबस्ट्रेट डाला, देन 20, देन 30, तो रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलमोस्ट सीधा ऊपर जा रहा था. रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि ये 1 पर 10 रेट ऑफ द रिएक्शन था, 2 सबस्ट्रेट पर 20 था, 3 सबस्ट्रेट के ऊपर 25 था, और यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अगर हमने 4 या 5 या जैसे जैसे हम आगे करते जा रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होता जा रहा है और इवेंचुअली रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज वी मैक्स अटेन हो जाएगी. तो हम कहते हैं कि लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत क्विकली इंक्रीज होता है, बट एज वी इंक्रीज मोर सबस्ट्रेट द रेट ऑफ द रिएक्शन गोज डाउन. ये आप देखें कि अगर कॉन्टिन्यूसली हाई रहता तो कर्व ये मिलनी चाहिए थी, लेकिन कर्व ऐसे नहीं मिल रही, कर्व डिक्रीज हो रही है. वी मैक्स अटेन हो जाएगा तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये 3 चीजें माइकलिस मेंटन इक्वेशन में कहीं. नाउ डिफाइन हाफ वी मैक्स एंड वी मैक्स. अब डियर स्टूडेंट्स आप यहां पर ये देखें कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट यहां पर 0 था, यहां पर 1 2 3 4 5 अप टू 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इंक्रीज किया हमने. रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता गया और मैक्सिमम ये मिल गया. तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर जिसमें फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही, प्लेट्यू रिसीव हो गया हमें, तो यहाँ हम कहेंगे वी मैक्स अटेन हो गया. वी मैक्स को अगर आप हाफ देखें तो दिस इज द हाफ वी मैक्स, दिस इज द वी मैक्स maximum rate of the reaction, this is half of the Vmax, that is half of the rate of reaction attained. So this is the half Vmax and Vmax. तो अब Vmax क्या है? Vmax refers to the reaction, half Vmax refers to the reaction rate when the speed of an enzyme catalyzed reaction is exactly half of its maximum possible speed. तो half of the maximum speed for example 20 है तो ये 10 होगा. Vmax क्या है? refers to the maximum rate at which an enzyme can catalyze the reaction when it is fully saturated with the substrate. तो इस substrate concentration के ऊपर कोई free enzyme नहीं होगा, कोई further product, नया product नहीं बनेगा. But at this stage, for example, if we add more enzyme, तो ये further ऊपर जाती रहेगी ये कर्व. ठीक है, so define half Vmax and Vmax. इसके बाद हम ये देखते हैं कि what is Km. अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हाफ वी मैक्स जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमें रिसीव हुई है, किस चीज की कॉन्सेंट्रेशन? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. तो ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है 0 5 10 15 एंड 20, तो 15 वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर हाफ वी मैक्स अटेन हुई है. तो वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जहां पर हाफ वी मैक्स किसी भी एंजाइम की अटेन हो जाए उसको हम उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को Km कहते हैं. सो इन दिस केस हम कहेंगे Km is equal to 15 moles. For example, this is 0, this is 5, this is 10 and this is 15. तो हम कहेंगे कि Km 15 moles है या 15 grams है. So substrate concentration की यूनिट्स जो भी होंगी Km की वैल्यू वही होगी. माइकलिस मेंटन इक्वेशन में अगर अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर 2 कर्व्स. नंबर 1 ये हमारे पास एक कर्व है जो ब्लू इन कलर है, एक ये कर्व है जो रेड इन कलर है. अब आप मुझे डियर स्टूडेंट्स खुद बताएं कि इस कर्व के अंदर ये कर्व क्या शो कर रही है? ये रेट ऑफ द रिएक्शन है, वेलोसिटी, एंड दिस इज द सबस्ट्रेट. जी बताइए. फॉर एग्जांपल ये कर्व हमें ये शो कर रही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि हमारे पास ब्लू कर्व शो कर रही है कि जैसे जैसे हम, और ये याद रखेंगे Km रेड की वैल्यू शो कर रही है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ब्लू है उसमें क्या है कि as we increase the substrate concentration, enzyme is unlimited, rate of the reaction continuously increase हो रहा है.
ठीक है, मैक्सिमम वी मैक्स हमें अटेन हो ही नहीं रही बिकॉज एंजाइम बहुत ज़्यादा बल्क में प्रेजेंट है। सबस्ट्रेट आप जितना मर्जी इंक्रीज कर लें, रेट ऑफ द रिएक्शन फर्दर इंक्रीज होता रहेगा, वो इस तरह का वी मैक्स अटेन नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई। और ये हमारे पास क्या शो कर रही है, रेड कर्व। ये रेड कर्व हमें शो कर रही है कि इस केस के अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई 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 और इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर 100 मिलीमोल्स या 100 मोल्स के ऊपर आकर एंजाइम का मैक्सिमम रेट अटेन हो गया, दैट इज वी नॉट जो है वो वी मैक्स की इक्वल हो गई है। तो इसका हाफ अगर आप करेंगे तो दिस इज हाफ वी मैक्स, और हाफ वी मैक्स के ऊपर एंजाइम सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जो हाफ वी मैक्स के ऊपर अटेन हो रही है उसको हम Km कहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ Km। नाउ Km हमें क्या क्या चीज बताएगी? Km हमें बताएगी एंजाइम एफिनिटी। तो हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल देयर आर टू कर्व्स, नंबर वन दिस इज द रेड कर्व एंड नंबर टू दिस इज द ब्लू कर्व, ठीक है। दोनों में आप देखें, इसमें भी वी मैक्स अटेन हुआ, इसमें भी वी मैक्स अटेन हुआ है। दीज कर्व्स आर ऑब्टेन्ड विद टू डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। ये रेड कर्व एक और एंजाइम है, ब्लू कर्व एक और एंजाइम है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि रेड कर्व एकदम से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था और यहां पर आकर सैचुरेट हो गया, जबकि ब्लू कर्व ग्रेजुअली इंक्रीज होते 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 यहां पर आकर इसका वी मैक्स अटेन हो गया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि Km किस कॉन्सेंट्रेशन की क्या है। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास वी मैक्स अटेन हो गई इस रेड एंजाइम की या रेड कर्व की या एंजाइम 1 की। तो इसका हाफ क्या है ये, तो हम कहते हैं ये 1 मिलीमोल के ऊपर आकर तो तकरीबन इसकी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का हाफ वी मैक्स अटेन हो गया, तो ये इसका Km है। अब ब्लू कर्व को देखें, ब्लू कर्व अगर हम यहां पर जाते हैं तो 5, 10, 20, 30 नहीं 5, 10, 15, 20, 30, 15, हम 10 की यूनिट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 30 क्या होगा, दिस इज द, हम ये बात करेंगे कि दिस इज द हाफ वी मैक्स ऑफ द ब्लू कर्व। तो ये अगर यहां पर आकर रिसीव हो रही है तो 1, 2, 3 ये इसका हाफ वी मैक्स होगा। तो हाफ वी मैक्स रेड कर्व की हमारे पास वो Km जो कॉन्सेंट्रेशन है जो ब्लू कर्व की है वो ऑलमोस्ट ये है, और जो रेड कर्व की Km है वो ये वाली कॉन्सेंट्रेशन है। तो Km किसकी हाई होगी? Km हाई है ब्लू कर्व की और कम किसकी है? रेड कर्व की। तो अब Km अगर कम है किसी भी एंजाइम की तो वो क्या शो करेगी? तो हम कहते हैं एट लो Km मींस द एंजाइम बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट स्ट्रांगली एंड रीचेस हाफ ऑफ द Vmax एट अ लोअर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। बहुत जल्दी आपका Vmax अटेन हो जाएगा बिकॉज उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द लो Km शोज द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम। हाई Km इंडिकेट्स वीकर बाइंडिंग एंड दैट के वीकर बाइंडिंग से क्या मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 5, 10, 20, 30, 40, 50 ये है, तो हम बात करते हैं कि इसको मोर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर हुई Vmax अटेन करने के लिए। इस एंजाइम को जो रेड वाली कर्व है लेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड थी Vmax अटेन करने के लिए, तो इसकी Km भी कम है, इसकी Km ज्यादा है। तो Km कम शो कर रहा है। दिस शोज कि सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर एंजाइम सैचुरेट हो गया, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, एफिनिटी बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू दिस कर्व। So high Km indicates weaker binding and that more substrate is needed to reach half of the Vmax. Km of hexokinase and glucokinase। अब हम रियल सिस्टम में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये देखें, अगेन हमारे पास तकरीबन वही कर्व है। ये हमारे पास रेड है जो हेक्सोकाइनेज की है, और हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज 6 को फॉस्फोरिलेट करता है। ये ग्लूकोकाइनेज है, ग्लूकोकाइनेज भी ग्लूकोज 6 को फॉस्फोरिलेट करता है। तो हमारे पास सबस्ट्रेट सेम है, एंजाइम डिफरेंट है। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है 5, 10, 15, 20 फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर V0 ये जा रहा है। तो आप ये देखें कि इसका Vmax इस लेवल पर अटेन हो रहा है, तो इसका हाफ Vmax ये है। रेड वाली जो एंजाइम है दैट इज हेक्सोकाइनेज, इसका जो Vmax है हाफ Vmax है वो ये है। तो इसकी Km क्या हो जाएगी? हम कहते हैं 0.1 मिलीमोल। इसकी Km क्या होगी? तो हम कहते हैं 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल पर आ गया। तो अब मुझे बताएं कि Km किसकी कम है ऑफ दिस वन। तो Km जितनी कम होगी दिस शोज दैट एंजाइम हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स इट्स सबस्ट्रेट और बहुत लो लेवल के ऊपर ही Vmax अटेन कर लेगा।
जबकि हाई KM है जैसे ग्लूकोकाइनेज की है तो ये 10 मिलीमोल है। दिस शोज कि हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सैचुरेटेड Vmax अटेन करने के लिए। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज जो कि हमारे पास टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, मसल टिश्यूज में, कार्डियक टिश्यूज में, इफेक्टिवली फास्फोरिलेट ग्लूकोज। ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन होगी तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, ATP बनेगा। सो फास्फोरिलेज ग्लूकोज इवन एट लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंश्योरिंग मोर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल्स। हमारे पास ग्लूकोकाइनेज जो है, दिस ब्लू कर्व ये शो करता है कि फाउंड इन लिवर एंड पैंक्रियाज, बहुत ज्यादा अमाउंट में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब तक नहीं होगी ये ग्लूकोज को फास्फोरिलेज नहीं करेगा। सो ग्लूकोकाइनेज इज एक्टिव ओनली व्हेन ग्लूकोज लेवल्स आर हाई। फॉर एग्जांपल आफ्टर मील, जैसे कि हम खाना खाएंगे तो आफ्टर 20 पोस्ट पेरेंडियल यानी कि 20, 30, 40 मिनट्स में मैक्सिमम ग्लूकोज लेवल अटेन हो जाएगा सर्कुलेशन में, उस वक्त ग्लूकोकाइनेज एक्टिव होगा। जबकि एट अ वेरी, हमने विदाउट मील कोई भी खाना नहीं खाया हुआ, फिर भी सर्कुलेशन में जो लो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उसको भी हेक्सोकाइनेज फास्फोरिलेट करके ग्लाइकोलाइसिस जारी रखेगा to produce more and more amount of ATPs. So glucokinase high concentration of the glucose पर एक्टिव होता है, hexokinase low concentration of the glucose के ऊपर भी एक्टिव हो जाएगा। Now अब आप ये देखें कि एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर Km of the LDH1 and LDH5, these are the two isomers of the lactate dehydrogenase। तो हम ये बात करते हैं कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर अगर आप देखें तो सिमिलरली यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 5 जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 5। सो 1 जो है हमारे पास उसकी ब्लू वाला कर्व जो है, दिस इज हाई Km एंड इसकी लो Km होगी। सो एंजाइम A हैविंग लो Km एंड एंजाइम B हैविंग हाई Km। Now the MCQ is, which of the following best describes an enzyme with a low Km value? Which of the following best describes an enzyme with a low Km value? तो अगर Km value लो होगी तो एंजाइम कैसे डिस्क्राइब हो? उसका मतलब यह है कि उस एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी और बहुत क्विकली Vmax अटेन कर लेगा। तो हम बात करते हैं कि इसमें अगर आप देखें तो किस एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन या Km कम है, वेदर रेड कर्व और ब्लू कर्व। ये देखें, इसकी Km ये है, ब्लू वाली की Km ये है, तो ये 0.1 के करीब है। 0.1 जो Km है वो बहुत लो है, तो ये कहता है कि फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एंजाइम विद अ लो Km। अब आप क्या बताते हैं, द एंजाइम हैज लो एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। अगर लो एफिनिटी है तो फिर तो यहाँ पर आनी चाहिए थी। ये एफिनिटी Km जितनी कम होगी उसकी एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। दिस चॉइस इज स्ट्रॉन्ग। द एंजाइम हैज हाई एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट, यस। अगर जितनी Km कम होगी एंजाइम एफिनिटी ज़्यादा होगी और फुली सैचुरेट हो जाएगा, Vmax अटेन कर लेगा। द एंजाइम ऑपरेट्स ओनली एट अ हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, बहुत ही लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी एंजाइम काम करेगा। द एंजाइम एग्जिबिट हाई एक्टिविटी एट Vmax, नहीं, Vmax के ऊपर तो दोनों ही एक एक्टिविटी शो कर रहे हैं। द एंजाइम इज इनहिबिटेड बाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। द ओनली चॉइस इज A। एंजाइम एफिनिटी एंड Km। Affinity of the enzyme is directly proportional, inversely proportional to Km. That is, अगर Km decrease होगी, affinity increase होगी, inversely proportional है। तो यहाँ पर आप देखें, this is the Km1, this is the enzyme 2, Km2, किसकी enzyme Km कम है? This Km is low. Small Km for enzyme 1 reflects a high affinity, and large Km of the enzyme 2 reflects the low affinity. So this is inversely proportional. ठीक है, तो हम कहेंगे स्मॉल Km क्या शो करेगा, न्यूमेरिकली स्मॉल और लो Km रिफ्लेक्ट्स अ हाई एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट बिकॉज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज नीडेड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम, दैट इज रीच अ वेलोसिटी दैट इज हाफ Vmax। तो अगर आपके पास Km कम है, ये वाली Km है, तो आपका जो Vmax है उसका हाफ Vmax यहाँ पर आपका Km है वो भी कम होगा। और अगर आपका Km2 फॉर एग्जांपल इसका Km2 हाई है तो हाफ Vmax भी इसका हाई होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही फुली सैचुरेट हो जाएगा। लार्ज Km क्या करेगा, न्यूमेरिकली लार्ज Km रिफ्लेक्ट्स अ लो एफिनिटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है हाफ सैचुरेट करने के लिए। मोर सबस्ट्रेट ऐड करते रहे आफ्टर सम टाइम Vmax अटेन। यहाँ पर बहुत ही कम सबस्ट्रेट के ऊपर ही हाफ Vmax अटेन हो जाएगी। सो Km2 जो हाई Km है, न्यूमेरिकली लार्ज है, दिस शोज इसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट से कम होगी।
Now, which statement is true about an enzyme that has high Km value? The enzyme has affinity, high affinity for the substrate? नहीं, अगर high affinity होती तो Km तो कम होनी चाहिए थी. The enzyme will achieve Vmax at low substrate concentration. Yes, बिल्कुल right है कि बहुत ही कम substrate के ऊपर ही Vmax attain हो जाएगा. The enzyme has a low affinity for the substrate? नहीं. The enzyme exhibit non-competitive? नहीं. The enzyme will be less efficient at higher substrate concentration? नहीं. The option 2 is right. Now, इसका ऑप्शन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपने मुझे आंसर्स में इनबॉक्स में बताना होगा, राइट? अ पेशेंट विद लिवर डिजीज, एक पेशेंट है विद द लिवर डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल ALT है, शोज एलिवेटेड लेवल ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एलिवेट हो गया, ALT इंक्रीज हो गया विद अ हाई Km फॉर इट्स सबस्ट्रेट, Km भी उसकी ज्यादा होगी, व्हाट माइट इंडिकेट्स द एंजाइम इज हाईली एफिशिएंट एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. अब ये क्या हो गया? विद अ हाई Km. और ये ज़हन में रखिए कि पेशेंट है लिवर डिजीज के साथ, ठीक है, उसका Km हाई हो गया है, तो क्या इसका मतलब है? व्हाट माइट इट इंडिकेट्स? ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे देंगे. द एंजाइम इज हाईली एफिशिएंट एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. द एंजाइम एक्टिविटी विल बी greatly reduced at normal substrate concentration. The enzyme activity is independent of the substrate concentration. The patient has increased sensitivity to drugs metabolized by this enzyme, and the patient liver function is unaffected by the enzyme activity. नहीं, ये बात तो नहीं हो सकती, ये बात भी नहीं हो सकती. Choices आपके पास इन्हीं 3 options के अंदर होंगी. In a Michaelis-Menten plot, how is Vmax identified? The substrate concentration at half of the maximum velocity? नहीं, Vmax का पूछ रहा है. The maximum velocity of the enzyme catalyzed reaction? हाँ, this is the Vmax. Question 2, option 2 जो है ये ठीक महसूस होता है. The point at which the enzyme inhibition occurs? नहीं, enzyme inhibition की बात ही नहीं हो रही, Vmax की बात हो रही है. तो वो choices जो useless हैं उनको तो उसी वक्त आप उसको ब्लॉक कर दें. The substrate concentration at which the reaction velocity is highest. Substrate concentration, तो वो तो Vmax की बात कर रहे हैं, substrate की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो velocity की बात कर रहा है. तो substrate concentration जहाँ पर highest velocity होगी तो उसको हम substrate की बात करेंगे ना, Vmax की बात तो नहीं करेंगे. Rate of the reaction when no substrate is present, absolutely wrong. So these 2 choices तो बिल्कुल गलत हैं, ये भी गलत हो गई, पीछे ये 2 रह गई. The substrate concentration at which at half of the Vmax velocity, तो ये तो Vmax की बात कर रहे हैं, ये भी गलत होगी. तो there is only one option left, that is B. If the substrate concentration equals Km, अगर substrate concentration Km के इक्वल हो जाए, what is the reaction velocity in relation to Vmax? तो वहाँ पर क्या होगा? The reaction velocity is equal to Vmax. जिस अगर substrate concentration Km की इक्वल हो तो वो half Vmax की इक्वल होनी चाहिए ना. The reaction velocity is half of Vmax? Yes. The reaction velocity is 0? Absolutely not. बिल्कुल ही गलत है. The reaction velocity is twice? बेतुकी सी बात है. The reaction velocity is unaffected by Km? Absolutely not. So the reaction velocity is half of the Vmax. इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे देंगे. What would happen if you increase the substrate concentration beyond saturation? अगर आप substrate concentration को increase करते रहें, saturation level that is Vmax attain हो गया, और आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते रहें तो फिर क्या इफेक्ट होगा? Vmax चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा? द रिएक्शन रेट वुड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली? नहीं, द रिएक्शन रेट वुड कंटिन्यू टू राइज लीनियरली. हम कह रहे हैं Vmax ऑलरेडी अटेन हो गया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं. द रिएक्शन रेट वुड रिमेन एट Vmax. द रिएक्शन रेट वुड डिक्लाइन ड्यू टू सबस्ट्रेट इनहिबिशन. द रिएक्शन रेट वुड ड्रॉप टू 0. A drug is metabolized by an enzyme with a high Km value. Km value कम नहीं है, Km value high है. Km value high है तो एंजाइम की एफिनिटी कम है. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते काफ़ी हाई करेंगे तो Km अटेन होगी, ठीक है, क्योंकि एंजाइम की एफिनिटी कम थी. एफिनिटी क्या क्यों कम थी? बिकॉज Km ज़्यादा थी. अब आप मुझे इसका आंसर देंगे. A patient presents with decreased Vmax of an enzyme, यानी कि Vmax पहले हाई थी, अब वो कम हो गई है. Vmax जल्दी अटेन हो रही है. What might this suggest about the enzyme role in disease? डिजीज के अंदर एंजाइम का रोल क्या होगा? The enzyme has a higher affinity for its substrate. एफिनिटी चेंज हो गई? नहीं, एफिनिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए, एंजाइम तो सेम ही है. The enzyme is more efficient at low substrate concentration. The enzyme has decreased maximum rate of reaction. The enzyme substrate is present in excess.
द एंजाइम एग्जिबिट कॉम्पिटिटिव इनोवेशन, इसका आंसर मुझे आप दीजिएगा, इसको आप थॉरोली स्टडी कीजिए. So dear students, in this lecture we discussed about the Vmax, half Vmax, Km, relation of Km with affinity and Michaelis-Menten equation. Thank you very much. You were with me in Biochemistry with Dr. Irfan Raza. Please subscribe and like and share this channel. Thank you.